What will you say about your character? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिल्म रिलीज होने वाली है होटल ब्यूटीफुल, किस तरह का आज का जो सीक्वेंस है वो आप शूट कर रहे हैं और किस तरह का आज का पूरा सीन आप पिक्चराइज कर रहे हैं? We'll start, huh? Yeah. Okay. Hi everyone, wishing you a very very Merry Christmas and a Happy New Year from Rajat Menon and Alicia Farrer. yes. So yes, we are shooting for Hotel Beautiful, and Hotel Beautiful. This movie is produced by Umbrella Film Corporation and Madhya Film Corporation, directed by Samir Iqbal Patel. And yes, I've done movies down south, and this is my first Hindi picture, Hotel Beautiful. And my character name is Akhileshwar Muthulingam, and like every person has his dreams about honeymoon. Akhileshwar also has dreams about honeymoon, and to make this dream come true, he comes to Hotel Beautiful. And what happens to his honeymoon forms the rest of the story. And yes, Alicia, you can tell about yours. My character is Lubna, and she's a nurse by profession. And she's come to surprise her husband on their honeymoon, and then she bumps into him. And then a series of crazy events take place. So yeah. So today is our final shoot, and it's our last day. So we're very excited and also a little bit sad that everything's over. But we're also really excited for the release. We are like real fun time together, especially as a family. We all were like chilling out. We didn't really feel that pressure of doing that film kind of morning schedules, evening schedules, something like that, because it's all like friends and everything. And luckily we all had this workshop and everything organized by the director Samir Iqbal Patel. So it was all like fun together, and we all knew exactly what we had to do, like in terms of script and everything. So it was all like mostly like we had a vacation in Goa and Mumbai also, the schedules and everything. So we had fun shooting in Hotel Beautiful. So I think this off-screen chemistry will be reflected in on-screen also, and I really hope that you will enjoy this Hotel Beautiful. हमने सुना है कि हैज जो है आपके ठीक पीछे वो रैंप पे चलने वाली है, तो ये किस तरह का पूरा क्या होने क्या वाला है? Ramp, yeah, that was actually a fun part of this movie actually, but I think it's more like you have to watch and find out what is the funniest part in that ramp walk. And I must say that it is really funny, and you will really have to watch this movie, because I think we are not allowed to speak about the ramp. क्रिसमस इज राउंड द कॉर्नर और Yes. हम देख रहे हैं कि आप क्रिसमस के पूरे गेटअप में हैं। हाँ। ये जो आइडिया था, ये किसका आइडिया था पूरा क्रिसमस का गेटअप करना या इसके बाद? क्रिसमस ये आइडिया बिल्कुल समीर सर का आइडिया है, बट यू नो व्हाट, क्रिसमस इट इज, एंड वी आर शूटिंग, दिस इज द लास्ट डे ऑफ अ शूट, and as she said, like we are a little bit sad Nervous also, and sad, yeah. but because we had very fun shooting time together. So in that way we are sad that we are all going to part away from this Hotel Beautiful. But yes, this idea is because Christmas is coming, and as you all know, Christmas, it's a very, what to say, it's a festival, it's an occasion of people coming together, enjoying and spreading love basically. And it's like a family time, Yeah, it's yeah. like a family time. So we are also having this family time, and we are spreading love through Hotel Beautiful. न्यू ईयर इज राउंड द कॉर्नर, और कुछ खास रेजोल्यूशन जो आप लोगों का शेयर करें? Every year I make resolutions and nothing works out. So this time I am not making any resolution, and this is my resolution actually, that I'm not going to make any resolution. That's interesting. For me, my resolution, I don't know, do more good films and stuff like this. Yeah, make a good family. Maybe good family. I mean, Oh, okay. Okay, so maybe I she's mean, like, probably when you get work married. together, when you work together on set, it's like a family. So, to have like a family like that and stuff like that. Yeah, It's good. that's true. Well, as the title suggests, it's Hotel Beautiful. So what are those cool things you are trying on the set? Exactly as I told, you have to see the movie. It's Yeah, like so much crazy crazy stuff going It's on. basically, in complete one entertainment. word I can tell, it's a laugh riot. It's like it's completely out and out comedy film. There is no space for like any other kind of emotions. It's just that the people coming to see Hotel Beautiful can come by keeping their sorrows, depressions, everything outside. Come, enjoy for 2 hours and go back. That's the only motive of Hotel Beautiful. One of the biggest comedy king is on the set, is the poem. Yeah. It's becoming a center. So what sort of gifts you got, and what sort of talent, what sort of acting comments you got? No, the biggest thing, like, see, Samir sir gave us an opportunity to act in this movie. That itself was a big gift for us. And getting to act with a legend like Johnny Lever sir, that itself is a big gift for us. So I don't think you have to get any more gifts. But as you said, yes, working with a very experienced guy, it definitely, gives us some input.
like his experience, his thoughts, his words, and everything together puts us, our output like comes out in really different manner from far from what we thought, and that was my experience. And Yeah, definitely. Hotel Beautiful was my first Bollywood film, and it's been an exciting and amazing experience. And everything is like a good memory, and we've learned so much together. So yeah, it's truly like one big family. yes, thank you. बोलें शुरुआत करेंगे आपके किस तरह का रोल है ये फिल्म में आप दोनों का स्टार्ट विद योर नेम फर्स्ट ओके यू वांट टू गो अहेड या श्योर मेरा नाम जिया शर्मा है और इस फिल्म में मैं मिली का रोल अदा कर रही हूँ दैट्स इट और क्या कहूँ Well, hi, I'm Sagarika Chetri and I'm playing this character called Janu, जो Janu Lee हो गया at the, as the movie went on. And yeah, I'm the receptionist of the hotel Beautiful. तो मेरे जो मालिक हैं वो जॉनी सर है जो हैरी सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड या जो रिसेप्शनिस्ट है बेसिकली शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन प्लेस जो भी गड़बड़ हो रही है वो ट्राई करती है अपने तरीके से उसे सॉल्व करने की एंड व्हेन माय डायरेक्टर समीर इकबाल पटेल सर ने जब मुझे ये रोल ऑफर किया था सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कॉमेडी फिल्म आउट एंड आउट कॉमेडी एंड आई हैड टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद द कॉमेडी लेजेंड that's Johnny sir. So I was very excited. तुरंत मैंने इसलिए हाँ कहा and yeah the journey went on very well and here we are today. Merry Christmas के इस मौके पर we are wrapping up the film. So yeah it's been a great journey. हमने सुना कि भैंस रैम चलने वाली है तो आपका किस तरह से उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस वेल उस मामले में आई एम अ लिटिल अनफॉर्चुनेट क्योंकि मैंने कालीचरण के साथ कोई शॉट नहीं लिया है इट्स जस्ट दैट अलीशा एंड द अदर कैरेक्टर्स हैव गॉट सो आई एम द रिसेप्शनिस्ट सो आई जस्ट ट्राई टू कीप कालीचरण अवे फ्रॉम माई होटल एट लीस्ट सो या सो दैट्स हाउ इट इज़ lots of beauties in the film and they're fooling around so who's the beautiful in the beautiful well can you repeat again I said lots of beauties in the film as we all see but who's the fooling around who's the one who's fooling around there are lots and lots of characters who's fooling around in this film you can watch it and you'll come to know about it does it make any difference to you in the set that lots of girls are around actually when we were shooting everybody we all used to jam up and इतना हंसी मजाक होता था कि ऐसा लगता था कि अरे शॉट हो रहा है या वी आर ऑफ शॉट दोनों में हमको समझ नहीं आता था बिकॉज इवन आफ्टर द शॉट ब्रिजेश सर यू नो जॉनी सर समीर सर वी ऑल यूज्ड टू सिट एंड वी यूज्ड टू जैम अप एंड हैव अ गुड टाइम यार सो वी वर 11 days in Goa so those were the best days I think क्योंकि वहाँ पे जो मज़े किए हमने so it was just amazing and even our producers were a part of it so the entire cast actually we all are fools so we were all fooling around so what is the best thing about director Sameer what is the best thing about the director sorry I can't hear you what was the best thing about your director Sameer what kind of brief he gave ऑब्वियसली सबसे बेस्ट चीज़ तो उनकी ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और इस स्क्रिप्ट पर या सबसे अच्छी बात तो है उन्होंने उनकी जो इस फिल्म में राइटिंग है वो सबसे बेस्ट है और ये एक सिचुएशनल कॉमेडी है मतलब इसमें कोई फोर्सफुली कोई हंस नहीं रहा है एक सिचुएशन ऐसी है कि बस लोग एक दूसरे के साथ क्लैश हो जाते हैं और आई थिंक और दूसरी जो है उन्होंने हमें इतना कंफर्टेबल जोन दिया कि हमसे वो एक्टिंग निकलवा पाए तो आई थिंक ये उनकी सबसे बेस्ट चीज़ है To me, Sameer sir, working with him was amazing because उन्होंने इतना हमें space दे रखा है as an actor to improvise when we were shooting. He used to just come and he used to just brief us and he's not interfere much in what we used to do and he was always there to back us up. जो भी हम लोग गलतियाँ करते थे वो आके सुधारते थे but yes, actors were always given space. So that was the best thing and ऐसा कोई
मार्क नहीं था जहाँ लगता था कि वो हमारे डायरेक्टर हैं एंड वी आर एक्टर्स। वो हमारे साथ इतना जेल होके इतना कंफर्ट करते थे हमें while we were in the shot, that the shot used to be amazing and just spontaneous, and you know the comedy was just there. So yeah, that really helped us. Thank you so much. तो फिल्म रैप अप हो चुकी है, फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन किस तरह का किरदार होने वाला है आप दोनों का फिल्म के अंदर? I am playing Mrs. Jadia in the movie. It's a very interesting character. I've never played a character like that before. बहुत स्मार्ट है, क्लासी लेडी है, मिस्चीवस भी है, तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, एक बारी में बहुत सारे एक्सप्रेशंस देती है, तो बहुत इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. I've never played something like this before and I'm looking forward to the release of the movie. We are sad the movie has wrapped up because we have amazing memories. We shot in Goa before this, so everything was beautiful. The hotel, beautiful, had a beautiful feeling. But unfortunately all the things have to come to an end, so it has. But looking forward to its release and hope that everybody likes the movie. आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ तन्वी. बेसिकली वो एक मॉडल है, एक कुछ कंपटीशन रहता है ऑर्गेनाइज इन होटल ब्यूटीफुल, तो वो कुछ ऐसा कर जाती है जिससे कुछ अलग ही सिचुएशन क्रिएट होती है होटल में, और वहाँ से ही कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. शी इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, एंथुजियास्टिक है वो लड़की, और मुझे बहुत और मैं मज़ा आया. ऑर्गेनाइज करती हूँ था शो. या तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, और आज लास्ट डे है होटल ब्यूटीफुल का, तो मैं बहुत ही मिस करूँगी इस टीम को, और जो भी हम लोगों ने मज़ा किया इन गोवा, आई विल रियली मिस इट. कालीचरण का खास रोल है फिल्म के अंदर, किस तरह क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? और हमने सुना है कि वो रैम्प पे भी चलने वाले हैं. हाँ, शी इज़ अ शो स्टॉपर ऑफ दिस शो. शो स्टॉपर है तो ऑब्वियसली सारा सबसे ज़्यादा फुटेज उन्हीं को मिला है, कालीचरण जी को. आपने देखा ही होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग में भी सारा फुटेज उन्हीं को मिल रहा था, तो बहुत यूनिक शो स्टॉपर है वो. ऐसे शो स्टॉपर कभी देखा नहीं गया होगा, तो मज़ा आएगा ऑडियंस को भी देखने में. बहुत अलग चीज़ मिलेगी देखने के लिए. शायद बहुत कभी देखा नहीं होगा कालीचरण को इस अवतार में अवतार. किसी ने भी. द न्यू ईयर इज राउंड द कॉर्नर और नया साल शुरू होने वाला है. कोई खास रेजोल्यूशन आप दोनों का इस तरह से कोई शेयर करना चाहेंगे अपन? रेजोल्यूशन यही है कि अच्छा काम करूं आगे. बहुत से ऐसे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स में मैं काम करूंगी, और ऑब्वियसली सबको मैं विश करना चाहूँगी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. रेजोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अनदर वे कि नया साल आ रहा है तो रेजोल्यूशन होना चाहिए. बट एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, फिटनेस मुझे बहुत पसंद है, तो बट अप एंड डाउन होता रहता है. कभी रेगुलरली इनटू इट, देन सम कुछ प्रोजेक्ट आता है तो आप थोड़ा सा हट जाते हो उससे. सो मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन, या मैं ये अगले साल में करना चाहती हूँ कि मैं आई एम द फिटेस्ट and the best in 2015. So I'm looking forward to the year, and I wish everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year. May all your dreams come true, and do go and watch our movie, Hotel Beautiful. Thank you. थैंक यू. रोलिंग. सबसे पहले आपके किरदार के बारे में कुछ ब्रीफ कीजिए. किस तरह का किरदार होने वाला है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं जो किरदार कर रहा हूँ, ये किरदार है एक फैशन ऑर्गेनाइजेशन है जो फैशन शो करते, तो आई ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैशन शोज़. सो मेरा कैरेक्टर के फैशन ऑर्गेनाइजेशन, फैशन शो को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करना. फिल्म के डायरेक्टर हैं समीर सर, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा है समीर जी के साथ ये एक्सपीरियंस. समीर जी इज़ द सोल क्रिएटर, ही इज़ द डायरेक्टर, ही इज़ द डिज़ाइनर, ही इज़ द पैम्पर, ही डन एवरीथिंग फॉर द फिल्म. कालीचरण भी है. कालीचरण का किरदार मैं बताना नहीं चाहूँगा कि कालीचरण की, बट कालीचरण बहुत प्यारे तरीके से इस फिल्म में आए एंड जो एक ह्यूमर क्रिएट करते हैं. तो फाइनली क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फाइनली ये मैं बोलना चाहूँगा कि ब्यूटी एंड फूल
इनका जो एक मेल बंधन हुआ है, इसका जो एक ये तैयार हुआ दोनों मिलके, ये बहुत प्यारे तरीके से दर्शकों को हंसाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाथ देख के तैयार है क्या? तो भाई तो हाँ जॉनी भाई, क्रिसमस के फुल ऑन अवतार में आप दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से ये पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप? अरे भाई, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए कि हम लोगों ने अपनी शूटिंग कंप्लीट की है। बिल्कुल, होटल ब्यूटीफुल, हमारे डायरेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है। और देखिए, जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो इतनी खुशी होती है कि हम लोग कितनी मेहनत इन्होंने लगाई फिल्म बनाने में, और फिर हमसे कितनी मेहनत करवाई इन्होंने। तो एक वो होता है कि जो हमने सोचा है वो काम उसी तरह हो, उसी तरह हो जाए, और जिस तरह इन्होंने सोचा उसी तरह काम हो गया। बहुत अच्छे से हुआ। इस खुशी में इन्होंने ये पहना दिया मुझे सांता क्लॉज। बोले बस आज डबल खुशी है, एक तो क्रिसमस की और एक हमारी फिल्म की कंप्लीशन की। या आज लास्ट दिन था शूट का, जिसमें सारे एक्टर्स मौजूद थे। उसमें एक स्पेशल जो हमारे स्टार अट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे वो है कालीचरण, जो भैंस है और उसको जो है स्टेज के ऊपर, रैम्प के ऊपर वॉक करवाया है। तो वो एक अलग चीज़ हमने आज शूट की है। उसके अलावा सारे एक्टर्स के कुछ सीन्स बाकी थे वो हमने शूट किए हैं। सो इट्स अ डबल सेलिब्रेशन फॉर अस। इट्स क्रिसमस एंड द फाइनल डे ऑफ शूट, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। आमतौर पे हमने कई सारे सरदार किरदार आपके देखे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अलग मायनों में देखा जाएगा, क्योंकि एक सेंटा सरदार कहीं ना कहीं दिखता है। ये किस तरह के अगर आप एक नया चेंज लेके आ रहे हैं? आज एक सरदार का कैरेक्टर वो कह रहे, सरदार के कैरेक्टर में तो हमने आपको आमतौर पे देखा है, जी जी जी, बट एक सेंटा सरदार देखने में आज पहली बार आया। नहीं सेंटा सरदार नहीं है, सेंटा तो उसमें अभी बनाऊँ मैं। फिल्म में तो सरदार हूँ। हाँ, हैरी सिंह मेरा नाम है। और ये जो ब्यूटीफुल होटल ब्यूटीफुल जो है, उस ब्यूटीफुल में मैनेजर हूँ कम मैनेजर, अबे मालिक कम मैनेजर, मैनेजर कम मालिक, मालिक भी हूँ मैनेजर भी हूँ। तो उस होटल में तरह तरह के लोग आते हैं, किस टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं, उनके साथ मेरा क्या होता है क्या नहीं, ये सब कुल मिला के इतने सारे कैरेक्टरों के साथ उन्होंने फिल्म बनाई है। और एक एक उल्टे सीधे कैरेक्टर्स हैं, कोई शादीशुदा है, किसी का लफड़ा है, किसी का इसके साथ, किसी का उसके साथ। ये सब चीज़ों को किस तरह हमने एडजस्ट किया है, इसके अंदर कैसे कॉमेडी पैदा होती है। और फिर कुल मिला के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं होटल के अंदर, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पिक्चराइज किया है। और मुझे भी बहुत अच्छा यूज़ किया है एज ए सरदार। मैंने ये मेरी चौथी फिल्म है, लेकिन बहुत क्यूट सरदार है, मज़ेदार सरदार, बड़ा इनोसेंट और प्यारा सा और सबकी मदद करने वाला, इस टाइप का कैरेक्टर है। हाँ जी, आगे आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जॉनी भाई के करियर का एक बहुत ही बेहतरीन किरदार होगा जो हैरी सिंह का रोल है। जी, इन्होंने सरदार तो पहले बहुत किए हैं, बट इस टाइप का जो सरदार है, जो होटल ब्यूटीफुल है, उसमें कई सारे फूल्स हैं, और जो फूल्स के जो सरदार है वो है हैरी सिंह। तो सबसे ज़्यादा कॉमेडी वो क्रिएट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ह्यूमर है वो हैरी सिंह लेकर आते हैं, और वो जॉनी भाई का किरदार है। जॉनी भाई, कई सारी ब्यूटीफुल कन्याएं भी हैं, और उन सब के हाय फूल कैसे होता है, ये थोड़ा सा कुछ फूल है, कुछ फूल है। तो जो फूल है वो कन्याएं है, जो फूल है वो बाकी किरदार है। जो हाँ, उनके लिए पूल भी है नीचे, पूल भी है उन कन्याओं को आप पूल में भी देख लेंगे। और हम सारे बहुत कूल भी है। हाँ, जॉनी भाई, कहीं ना कहीं नई स्टार कास्ट है, कुछ जाने माने कलाकार भी हैं, विजेंद्र काला जी हैं, हाँ। कुछ नए जो हैं इमाम सिद्दीकी डेब्यू कर रहे हैं, कुछ नए कलाकार हैं। इमाम सिद्दीकी हैं, काला हैं। तो कैसा एक बॉन्डिंग रहता है नए कलाकारों के साथ? नए कलाकारों के साथ नहीं, और ये सब आज के नए कलाकार जो है ना, वो नए नहीं होते हैं, ये सब सीख कर आए हुए होते हैं, सब तैयारी में आते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इनको कोई नर्वस, बल्कि इनको देख के हम नर्वस हो जाते। ही इज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट,
ही जॉनी भाई जो है ना वो नए लोगों को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना कि फिर वो जो है कंफर्टेबल होके बहुत अच्छा काम निकलवाते हैं उनसे। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स नर्वस हो रहे थे, टेक हो रहे थे, वहाँ जॉनी भाई ने उन्हें कंफर्टेबल किया। और मैं एक चीज़ जॉनी भाई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो कभी गिव अप नहीं करते, चाहे 10 टेक हो जाए, 15 टेक हो जाए, जॉनी भाई हमेशा उसी टेम्पो के साथ नए आदमी के साथ भी काम करते और उसे काम कंफर्टेबल करके निकलवाते हैं। सो इट मेक्स माई जॉब वेरी ईजी। हाउ इम्पोर्टेंट दिस सीक्वेंस इज टुडे एंड कितना फिल्म कंप्लीट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द इंटरवल पॉइंट इन द फिल्म। ये जो भैंस का जो सीक्वेंस है कालीचरण का, यहाँ पे होता ये है ना कि हैरी सिंह जो है किसी भी तरह से इस होटल को एक अवार्ड दिलाना चाहता है जिससे ये होटल की हालत सुधर जाए। और ये जो भैंस है, जो कालीचरण है, वो इमाम जो अवार्ड को जज करने आया है उसकी पेट है। तो जब ये भैंस स्टेज पर दौड़ जाती है तो इमाम को बहुत फील होता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द फिल्म, इंटरवल पॉइंट, एंड विच पुट्स हिम इन अ स्पॉट, यू नो। विल इट बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू शूट दिस भैंस को वॉक करवाना कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा? अरे बहुत बहुत तकलीफ हुई है ये तो मैं तो हमेशा इनको बता, आप कैसे काम करवाएंगे भाई से भाई? तो बोले हो जाएगा यार। मेरे को बड़ी टेंशन थी लेकिन उन्होंने करवा के लिया। हमारे महमूद साहब जो एक्शन डायरेक्टर हैं, वो उनका अपना टैलेंट है, उन्होंने करवा के लिया। पता नहीं कैसे कैसे भैंस को दौड़ाया। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है। The Buffalo also has been very cooperative. Besides the actors, उसने भी बहुत कोऑपरेट किया है। और हमें लगा था कि ये सीक्वेंस में बहुत मुश्किल होगी तो हमने 2 दिन रखे थे, लेकिन मेजर पार्ट्स हमने आसानी से शूट कर लिए, जिसकी वजह से आज हम रिलैक्स्ड हैं और आज आप लोगों से बातें कर रहे हैं। तो हाउ मच द फिल्म कंप्लीट्स नाउ और कितना It's 100% complete. Today we are फिनिश आज लास्ट डे। last day. This is wrap up. We are planning April अप्रैल 2015. Yes, April is the release. अप्रैल फूल नहीं बनाने को April Fool में Beautiful. That's the plan. फर्स्ट को। Yes. मतलब first को is not a Friday. So after that, 3rd is the Friday. We are planning to release it on the 3rd April. Thank you very much. Thank you. समीर जी, म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक किस तरह का है फिल्म में और कैसे होने वाला है? Music इसमें जो है ना it's a part of the narrative. We have a title song which is on Hotel Beautiful. Plus उसमें जो narrative में जितना भी music है वो it comes as a part of the narrative, the songs, everything. It's going to be different. It's not a musical film. The music will enhance the film. It'll take it to a different level. ये फिल्म का रिदम अलग है। It's a different फिल्म film. खुद एक म्यूजिक है, क्योंकि इस फिल्म में इतने तिगड़म है, उसमें कंफ्यूजन, उसमें सब पूरा कॉमेडी क्रिएट होता है। और फिर कोई बम रख देता है होटल में, और बम का जो धमाका होता है उसके पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये हम नहीं बताएंगे। ये आप देखिए, होटल ब्यूटीफुल कितना ब्यूटीफुल होता है, क्या होता है देखिए। Okay. थैंक यू। Thanks. होटल भैंस इज ब्यूटीफुल। जी देखो, आज जो सीक्वेंस शूट हुआ है वो रैम शो है, और रैम शो में एक से एक मतलब खूबसूरत बालाएं आई हैं गई हैं, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बाला है जिसका नाम है कालीचरण, और वो है भैंस।
तो भैंस इज़ ब्यूटीफुल इन होटल ब्यूटीफुल। तो उसका जो रैंपिंग है वो आज हम लोगों ने शूट किया है। और उसके बाद ये सेलिब्रेशन जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सेंटा क्लॉज का डे है ना, मैरी क्रिसमस। ये मतलब ये आइडिया तो मौसम का आइडिया, मतलब जिसे कहना चाहिए, मतलब कि माहौल ऐसा है जैसे होता नहीं है कि मतलब होली का सेलिब्रेशन होता है तो होली के आसपास तो होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली का होता है इधर उधर से रॉकेट छोड़ देते हैं। तो क्योंकि अब ये न्यू ईयर है और सेंटा डे मैरी क्रिसमस का डे है तो मतलब इसमें कोई आइडिया देने की बात ही नहीं है। जी जी यार, मतलब ये तो तुम चाहते हो कि मतलब कि बाकी ब्यूटी जो है मुझे डर्टीज में गिनने लगें, तो मतलब ऐसा पक्षपात मैं नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा कि मैंने क्या किया। तो होटल ब्यूटीफुल के अंदर मैं एक किरदार निभा रहा हूँ और पेड्रो, तो मैं और जॉनी भाई, जॉनी भाई के साथ काम करने का मेरा पहला अवसर है, ये बल्कि शुभ अवसर है। और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। गोवा में शूटिंग हुई मैक्सिमम, और अब हम बाकी का क्लाइमेक्स और थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे कर रहे हैं। और फाइनली कहने वाली बात ये है कि मैं और जॉनी सर एक होटल के पार्टनर होते हैं, और जिसमें जॉनी भाई का हिस्सा ज़्यादा है और मेरा कम है ना। और वही एक लड़ाई पूरी सिनेमा में, पूरी फिल्म के अंदर हमारी चलती रहती है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। और कैसे हम मतलब एक दूसरे के साथ मतलब ये होटल ब्यूटीफुल का सेलिब्रेशन करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।